Okay. Yeah. Very good morning to all of you, beta. Last class we have started with alkenes. Alkane के बाद में हाइड्रोकार्बन में what it comes, beta? Alkene. Quickly, I'll just tell you what we did in last class. हाँ, ठीक है? Right? Yeah, yeah. Come, beta. Alkenes are carbon-carbon double bond unsaturated hydrocarbon. They are also known as what? Olefins. General formula was what? CnH2n. If you take N2, you get ethene or ethylene. Common name is alkaline and IUPAC is alkene. Right? 3 will be, then it is propene. 4 will be butene. In butene, I can put double bond on the first carbon or on the second carbon. So I can have one butene or two butene. This is bond line structure there. Okay. They are known as position isomers. Then geometrical isomerism we did. If same group on double bond के left में दोनों ऊपर दोनों अगर same है, ऊपर दोनों same है, same on same side is known as cis. Same on opposite side, then it is known as trans. And then we did the condition for that, right? Then we started with the preparation. पहला हम लोगों ने क्या किया था? Elimination. देखो बेटा हम लोगों ने why we have to do elimination? Because if I take all this is saturated. When all four bonds are single, then it is known as saturated. I want to prepare one double bond here. So I have to remove something from here. यहाँ पे से दो चीज गायब करना पड़ेगा. तो इसलिए what we write that reaction as elimination. Then we did elimination from alcohol. Alcohol में क्या होता था बेटा? यहाँ पर OH होता था. तो यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा. तो मुझे पानी निकालना है. So if I want to remove water, I have to use dehydrating agent. तेरा नोट्स नहीं मिला तुझे? अरे यार उसके शेयर, हाँ उसके बाद शेयर करना. ठीक है? Okay. So I have to use dehydrating agent. In that also we have studied which alcohol is more reactive? Tertiary. Why tertiary is more reactive? Minus, do you know why tertiary is more reactive? Look, from alcohol, when we are doing this reaction, alcohol में से कौन सा bond break हो रहा है? OH वाला bond break हो रहा है ना बेटा. So now we have already studied that if there is an alkyl group क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है. प्राइमरी में एक ही alkyl group होगा. हाँ, so primary में so it will support this breaking once. In secondary, how many alkyl group are there? 2. So this will break with double speed. In tertiary, how many alkyl group are there? 3. So this will break, with the triple speed. This is known as plus I effect. Alkyl group are electron repelling. So therefore, for tertiary alcohol, हम लोग को क्या use करना पड़ेगा? बहुत एकदम low concentration use करना पड़ेगा, right? Now, this all we have done, huh? Okay. So look, beta, for primary alcohol, what do you mean by primary carbon? Zia, beta, do you know what is a primary carbon? Any idea? No? Okay, don't worry, beta. If any functional group is attached to carbon, functional group means alcohol, halogen. And if this is further attached to how many carbon? Only one carbon, then we call it as primary. If this carbon is attached to how many carbon? 2 carbon. On which the functional group is attached. Suppose OH जिस carbon पे attach हुआ, आगे जाके 2 पे attach होगा तो क्या हो जाएगा? Secondary. And when functional group is attached to the carbon which is further attached to how many carbon? 3. Then it is called as tertiary. So for primary, we are using only 95%, right? High concentration and temperature. Or if I want to use alumina, then 623. So this water will be eliminated. Then for secondary beta, can you see this OH is attached to carbon, which is further attached to how many carbon? 2. So therefore it is secondary. But I have used less concentration, or for alumina, I have decreased the temperature by 100 Kelvin, right? Because वो ज़्यादा reactive है ना, तो low temperature पे react हो जाएगा. So this water will be eliminated. 2 single bond will disappear. Then I'll get one new double bond. And in this beta, we studied one important rule. अभी यहाँ पे बेटा ना जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप इज अटैच, दैट कार्बन इज नोन एज विच कार्बन? अल्फा कार्बन. दैट कार्बन इज नोन एज, तो बाजू वाला कार्बन क्या हो जाएगा? बीटा. ये भी क्या हो जाएगा? बीटा. अच्छा, अब ये वाले बीटा पे कितने हाइड्रोजन थे? 3 हाइड्रोजन. इस पे भी कितने थे? 3. तो आई कैन रिमूव हाइड्रोजन फ्रॉम एनी कार्बन. इफ देयर आर इक्वल नंबर ऑफ बीटा हाइड्रोजन, आई कैन रिमूव फ्रॉम एनी. बट इन दिस केस कैन यू सी, देखो ये OH इस पे अटैच है कार्बन पे. ये अल्फा हो गया, ये बीटा. ये बीटा पे कितने हाइड्रोजन है बोलो बेटा? 3. ये बीटा पे कितने हाइड्रोजन है? 2. तो मैं किसमें से निकालू? अगर इफ आई रिमूव फ्रॉम हियर बेटा, तो आई विल गेट डबल बॉन्ड हियर. कैन यू सी? बट इफ आई रिमूव फ्रॉम हियर, देन आई विल गेट डबल बॉन्ड इन बिटवीन ना. So there was one gentleman, he came up with one rule. What was the name of that rule? Sidjev. Sidjev rule क्या बोलते हैं? When there are 2 beta carbon having unequal number of hydrogen, then hydrogen will be eliminated from the carbon which has what beta? Less hydrogen. Okay, and that will be the major product. इसलिए देखिए लेस वाला मेजर है, दिख रहा है ना बेटा? ये भी बनेगा, but that will be what? Fine. So this is the rule I have written here. Okay, I gave an extra statement, so they have written. Okay, yeah. Now tertiary beta, what is tertiary? इलोनी, ये देखे बेटा, ये OH है ना बेटा, यहाँ पे देखना कार्बन को अटैच है, आगे जाके कितने से अटैच है? 3 से ना बेटा. तो अच्छा,
ये भी अब बीटा हो गया, ये भी बीटा, ये भी, इस पे भी कितना हाइड्रोजन है 3, इस पे भी कितना हाइड्रोजन है 3, इस पे भी 3, तो कहां से भी मैं नहीं। ठीक है ना। और टेम्परेचर देख, कॉन्सेंट्रेशन 20 और एल्यूमिना में 100 केल्विन कम करने का। वहां पे प्राइमरी में कितना था 623, यहाँ पे सेकेंडरी में कितना था 523, हियर हाउ मच इट इज। अच्छा, व्हाई दिस रिएक्शन का, बिकॉज एक टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। ओके, देन बेटा आई वांट टू डू विच रिएक्शन बेटा, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डीहाइड्रो हेलोजिनेशन में क्या होता है बेलो बेटा, व्हाट इज डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, लुक हियर। ओके, उसमें से मैं क्या क्या निकालूंगा बेटा, हाइड्रोजन निकालूंगा और क्या निकालूंगा बोलो, हेलोजन, बोथ, आई विल डू बोथ, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। तो आई जस्ट शो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन, ये देखो, dehydrahalogenation. I given you your notes also. So removal of hydrogen and halogen. Beta, can you see here there is a halogen. This is hydrogen. Hey, my halogen is attached to the carbon. तो उसको क्या बोलेंगे, अल्फा। ये फंक्शनल ग्रुप है ना, इसके बाजू वाला क्या हो जाएगा, बीटा। Whenever we have to remove, तो we have to use alcoholic KOH. Which KOH? तो बेटा भी ये रिएक्शन तुम देखोगे बेटा, देखना ये K और Cl रिएक्ट होकर क्या बन जाएगा, KCl। ये H और OH निकल के क्या बन जाएगा, H2। तो दो बॉन्ड ब्रेक हो गए ना, तो देखिए डबल बॉन्ड है। अच्छा, तो रिमूवल अल्कीन बन गया कि नहीं, वी आर प्रिपेयरिंग अल्कीन। लुक, आई हैव टेकन दिस फेलो बेटा, दिस इज अवर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप जिसको अटैच होता है उसको अल्फा बोलते हैं, बाजू वाले को बीटा बोलेंगे, इसको भी बीटा। इस पे भी कितने हाइड्रोजन है 3, इस पे भी कितने हैं बोलो बेटा। तो आई कैन रिमूव फ्रॉम एनी वन, कोई रूल फॉलो करने की जरूरत। तो यहाँ से और यहाँ से मैंने निकाला, तो देख लो। अब ये टर्शरी है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, कैन यू सी, राइट। देखना, आयोडीन इज अटैच्ड टू कार्बन व्हिच इज फर्दर अटैच्ड 1 2 एंड 3, सो थर्ड ब्यूटाइल आयोडाइड, राइट। अच्छा, ये अभी यहाँ पे इस पे भी देखना, ये भी बीटा, ये भी बीटा, ये भी, सबके 3 3 हाइड्रोजन है ना बेटा, तो आई कैन रिमूव फ्रॉम एनीवेयर। क्लियर। सो के आई विल रिएक्ट इन वाटर, यू गेट इट। प्रॉब्लम कब आएगा बोलो बेटा, यहाँ पर प्रॉब्लम आएगा कि नहीं, ये देखो। नाउ लुक, माय फंक्शनल ग्रुप इज अटैच्ड टू कार्बन, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज बीटा। ऑन दिस बीटा हाउ मेनी हाइड्रोजन आर देयर, 2। ऑन दिस बीटा हाउ मेनी आर देयर, तो कौन सा लेस है, ये लेस है ना बेटा। तो यहाँ पे से हाइड्रोजन निकलेगा और वो क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, ब्यूटेन, सेजर्स रूल। क्लियर। और यहाँ से निकलेगा तो क्या होता है, इधर से निकलता तो माइनर प्रोडक्ट बनता था, दिखाई दे रहा है। अरे देखना, ये वाले पे 3 हाइड्रोजन था ना, तो ब्यूटेन विल बी मेजर एंड ब्यूटेन विल बी माइनर। दिस इज वी हैव डन। देन बेटा वी डिड फ्रॉम व्हाट, देखो ये पूरा यहाँ पे भी बता दिया, सेजर्स रूल वापस यहाँ पे। Geminal when two halogen are attached on same carbon, we call it as what? Geminal. When they are present on adjacent vicinal. So now what we are going to do from vicinal dihalides, from what vicinal, this we have done, beta. So I have taken zinc. तो आजू बाजू में हेलोजन है ना बेटा, तो देखो जिंक ZnCl2 बन जाएगा बेटा, and 2 single bond will break, so you get double bond. Got it? हाँ, देन बेटा वी डिड लिंडार्स कैटलिस्ट, याद आ रहा है ना। अच्छा, ये इफ आई टेक ट्रिपल बॉन्ड बेटा, इफ आई टेक ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है। अब तो इफ आई ऐड हाइड्रोजन देन व्हाट विल हैपन बेटा, दिस बॉन्ड विल ब्रेक, और यहाँ पे भी क्या हो जाता था बोलो बेटा, डबल बॉन्ड आ जाता था, और यहाँ पे क्या हो जाता था ऐसा। बट बेटा ये रिएक्शन यहाँ पे रुकेगा नहीं, ये वापस किसके साथ रिएक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा, और क्या बन जाएगा, अल्केन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, देख ना, यहाँ पे एच अटैच हो गया ना, तो अभी यहाँ पे अगर मैं करूंगा तो क्या हो जाएगा, इधर इधर सब जगह पे एच आ जाएगा। बट व्हाट वी वांट टू प्रिपेयर, वी वांट टू प्रिपेयर अल्कीन। सो आई वांट, दिस इज नोन एज कंप्लीट रिडक्शन, सो आई डोंट वांट दिस स्टेप टू, so I'm going to do partial reduction, and for partial reduction I'll have to change the condition. So I'm not going to use normal hydrogen and nickel, I'm going to use Lindlar's catalyst. Okay, what is Lindlar's catalyst, देखिए पूछेंगे, तो it is palladized charcoal deactivated by quinol। तो यहाँ पे लिखा है ना एरोपेन लिंडलार्स का। अभी देखिए बेटा, दिस वाज अ ट्रिपल बॉन्ड ना बेटा, सो नाउ माय बोथ H will go below, hey can you see same on same side, and reaction will stop at alkene. So which alkene I am going to get, cis alkene. So now for example, if I take R means what, methyl group, here also I am going to add methyl, so what I took butene, तो butene होगा तो बेटा ये ट्रिपल बॉन्ड था ना, देख रहा है ना, तो यहाँ पे भी सिर्फ डबल बॉन्ड ही हो गया, ये वाला एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, और यहाँ पे कौन अटैच हो गया, हाइड्रोजन, सेम ऑन सेम साइड, राइट। अच्छा, then there is one more reaction that which is known as Birch reduction. What is Birch reduction का reagent बेटा, सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया, you have to remember this, सोडियम और लिथियम इन लिक्विड। अच्छा, here what will happen, एक हाइड्रोजन अपोजिट साइड में ऐड होगा,
Can you see addition happens on opposite side? Acha, say are same group on same side or they are on opposite side? Tell me. Same on opposite side, na? So we get what? The answer. Till here we have done. Okay. Now chemical property abhi karenge. Acha, chemical property में always remember beta. Whenever any compound has a double bond in it. देखो बेटा, whenever look, alkene has a double bond or not? Tell me. Right? So this bond, double bond is which bond? ये वाला bond कौन सा होता है बेटा? Pi bond. Pi bond is a weak bond and this is what? Sigma. तो pi bond break हो जाएगा. Break होके क्या हो जाएगा बोलो बेटा? What will happen? Two new bonds will be formed. Can you see here? Pi bond. अच्छा, if I add something, suppose if I add hydrogen to this, then what will happen? Tell me. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? HH. So if I add hydrogen, it will give me what बेटा? Alkane. Hydrogenation. अच्छा. So this was the first reaction which I taught you last class. Can you see? देखना बेटा, ये कार्बन कार्बन डबल हाइड्रोजन है, निकल देख रहा, HH अल्केन हो गया. So if I take ethene, I get ethane. Now I'm going to do what? Halogenation. Halogenation होगा तो क्या होगा बोलो बेटा? I'm going to remove this. हाइड्रोजन की जगह पे what I'm going to write? Tell me. हेलोजन. मैंने यहाँ पे ब्रोमीन ले लिया बेटा. देखो तो यहाँ पे क्या अटैच हो जाएगा? ब्रोमीन ब्रोमीन. Are you getting it? अच्छा, ब्रोमीन का कलर क्या होता है? रेडिश ब्राउन. अल्कीन के अंदर जब हम लोग ब्रोमीन डालते हैं ना तो उसका वो कलर डिसअपियर हो जाता है. क्यों डिसअपियर हो जाता है? बिकॉज वो इसके साथ रिएक्ट करके नया कंपाउंड बनाता है. तो इसको क्या कहते हैं? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. तो बेटा, इफ आई गिवन यू टू टेस्ट ट्यूब, इफ आई गिवन यू टू टेस्ट ट्यूब, देखो बेटा, एक में देखो, ये देखो हेलोजन डाला. हेलोजन जब भी हम लोग ऐड करते हैं तो वी हैव टू यूज अ सॉल्वेंट. हु इज द सॉल्वेंट? कार्बन टेट्राक्लोराइड. व्हाई वी आर यूजिंग योर सॉल्वेंट? बिकॉज टू ये रिएक्शन मीडियम को डिसॉल्व करेगा. देख, आई गिवन यू टू टेस्ट ट्यूब. एक में क्या है बोल बेटा? अल्केन है. एक में कौन है? अच्छा, मैं इसके अंदर ब्रोमीन वाटर डालूंगा ना तो रेड रेड ही रहेगा बेटा. बट इसके अंदर अगर मैं डालूंगा तो क्या हो जाएगा? दैट रेड कलर जो था ना, इट विल डिसअपियर. इट विल डिसअपियर. ये रेड कलर डीकलराइज हो जाएगा. तो वो टेस्ट ट्यूब में क्या होगा बोलो बेटा? अल्कीन. अल्कीन का और एक टेस्ट होता है. व्हाट वी विल ऐड बेटा? अल्कलाइन केमिनो. शुरू में बाद में बताऊंगा, आज ही करेंगे बेटा. तो देखिए, दिस इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. अच्छा बेटा, यहाँ पे देखो, ये ब्रोमीन ऐड हुआ ना तो 1 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रोमो, 1,2 डाइब्रोमो इथेन. ये तक हम लोग ने किया था. तो पहला हाइड्रोजन ऐड करते थे, उसका नाम क्या था बोलो बेटा? हाइड्रोजन. हेलोजन ऐड करते थे तो नाम क्या था बोलो बेटा? हेलोजिनेशन. अब हम लोग आगे बढ़ेंगे. आज अभी हम लोग क्या ऐड करने वाले हैं? हाइड्रोजन एंड हेलोजन बोथ. हाइड्रोजन एंड हेलोजन बोथ वी आर गोइंग टू ऐड. उसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रो हेलोजिनेशन. ओके, ये तो हम लोगों ने कर दिया था. प्रिपरेशन याद आ रहा है ना? सभी मैंने बताया था, सेजियस रूल एंड ऑल. राइट बेटा? लिंडार्स वाला बताया था. लिंडार्स में बताया ना, उल्टा एडिशन होता था, फिर बर्च रिडक्शन. ओके, आ जाओ अभी यहाँ पे. कैटालिटिक प्रॉपर्टी आज हम लोग ने सबसे पहले क्या किया था? हाइड्रोजन. देखना, हाइड्रोजन ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा? देख, एच एच यहाँ पे ऐड हो जाएगा. राने निकल क्यों लिखा? राने निकल पे बेटा हाइड्रोजन चिपका हुआ रहता है. व्हेन यू हीट इट तो हाइड्रोजन एंटर्स. हम लोग हाइड्रोजन को स्टोर करके नहीं रखते बिकॉज इट इज हाईली एक्सप्लोसिव. अल्केन बन गया ना. तो देख बेटा, इसका एग्जांपल देख, प्रोपीन लिया तो क्या हो जाएगा बोल बेटा? ये बॉन्ड ब्रेक होगा, एक एच इधर एक एच इधर, तो क्या बन जाएगा? प्रोपेन. ये रिएक्शन का नाम क्या था? सेबेस्टियर सेंडरसन रिएक्शन. अल्कीन अगर ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? देखा ना बेटा, ऐड हो जाएगा बेटा. देखो, प्रोपीन में ब्रोमीन, बरोबर ना? ब्रोमीन डाला तो डीकलराइज हो जाएगा बेटा. देख, दिस इज अ टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन. नाउ वी गो टू द नेक्स्ट पार्ट. हाइड्रो हेलोजिनेशन. ए व्हाट आई वांट टू ऐड? हाइड्रोजन एंड हेलोजन. आई टू ऐड हाइड्रोजन एंड. तो बेटा अभी इसमें ना एक प्रॉब्लम होता है बेटा. हम लोग को ना अल्कीन कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का अल्कीन होता है. दैट यू हैव टू रिमेंबर. When I am going to do hydrohalogenation, hydro and halogenation, alkene are of 2 type. Which alkene are there बेटा? ये देखो, ये वाला अल्कीन देखो बेटा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है. अरे यार, व्हाइट कलर कहाँ गया? ये डबल बॉन्ड दिख रहा है बेटा? डबल बॉन्ड के लेफ्ट में और राइट में देखो, सेम है या अलग है? बोलो, सेम है ना? तो इसको क्या कहेंगे? सिमेट्रिकल. ये डबल बॉन्ड दिख रहा है बेटा? लेफ्ट में देखो क्या है और राइट में देखो क्या है, सेम है या अलग है? तो सिमेट्रिकल. अब ये डबल बॉन्ड दिख रहा है बेटा, इसके लेफ्ट में देखो क्या है और राइट में क्या, सेम है? तो असिमेट्रिकल. ये डबल बॉन्ड दिख रहा है बेटा, इसके लेफ्ट में देखो और राइट में देखो, दोनों सेम है क्या?
तो बेटा जब भी सिमेट्रिकल होगा ना तो कोई रूल नहीं फॉलो करना पड़ेगा। व्हेन आई हैव टू ऐड आई वोंट हैव टू फॉलो एनी रूल। ठीक है, तो देखना यहाँ पे लिखा भी रूल्स, नो नो रूल्स टू बी फॉलो। आपको नोट्स दिया ना, उसमें देखो ना बेटा, और यहाँ पे अपने को रूल फॉलो करना पड़े। ओके, अब देखो यहाँ पर मैं बता दूंगा पहला ही रिएक्शन, वो यहाँ पे भी मैंने दिया है। हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और एक जगह पे क्या जाएगा, हेलोजन। तो देखना मेरे को क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड मिलेगा कि नहीं, बोलो। अल्कीन से क्या मिलेगा, अल्काइल हैलाइड। अब देखो ये पहले मैंने लिया है। अच्छा, ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, बोलो बेटा। सिमेट्रिकल है। तो देख मैं तुमको ना सिमेट्रिकल का सब रूल बता देता, एक एक करके आएगा। रूल नहीं हुआ सिमेट्रिकल में, नो रूल है। देख ये रहा। ये देख रहा है बेटा, क्या हेडिंग लिखा है, बोलो हाइड्रो हेलोजिनेशन। वहां पे मत देख, यहाँ पे देख बेटा, एक बार यहाँ पे देख बेटा, देख इथीन है ना बेटा। मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, हाइड्रोजन एंड हेलोजन ऐड कर रहा हूँ कि नहीं। तो कोई भी कहां पे भी जाएगा। सपोज बेटा इफ क्लोरीन will go here, so it will become one chloro or not, tell me. And if I put chlorine here also, then also it will be first carbon only, na. So no, therefore we say no rule to be followed. The name of the final product will not change. अरे दो कार्बन है ना, क्लोरीन इधर पे भी जाएगा या इधर पे भी जाएगा तो सेम ही होगा ना, नाम चेंज होगा क्या। तो देख बेटा, क्लोरीन इधर पे जाएगा, देखिए डबल बॉन्ड तेरा ब्रेक हो जाएगा, देख। तो देख ये क्लोरीन इधर गया, एच इधर गया, तो ये देख CH3 CH2Cl, इथाइल क्लोराइड बना के नहीं। अभी तो हेलोजन चेंज कर सकते हैं कि नहीं, बोलो। Br भी ले सकता हूँ कि नहीं मैं इसके जगह पे। देख इफ आई टेक HBr, कैन यू सी, so bromine will go here and H will go here, so this will become CH3 and this double bond has disappeared, ethyl bromide. Can I change this bromine in as iodine or not, tell me beta, right? So this will go here and this will go here, ethyl iodine. सिमेट्रिकल में नो रूल टू बी फॉलोड, देखना सिमेट्रिकल अल्किन था। सपोज बेटा मैंने ब्यूट टू इन लिया, इज इट सिमेट्रिकल और नॉट, टेल मी। इथेन, इट इज सिमेट्रिकल और नॉट, टेल मी। सिमेट्रिकल ना। तभी तेरा मर्जी, तू क्लोरीन को कहाँ पे भेज सकता था, इधर इधर डालेगा तो कहाँ पे आएगा, 1 2 पे ही आएगा कि नहीं। तू बोलेगा नहीं सर मेरे को यहाँ पे भेजना, अच्छा यहाँ पे भेजेगा क्लोरीन, तो हम लोग पता है IUPAC में लोवेस्ट नंबर इसको देते हैं ना बेटा, तो यहाँ पे भी 2 पे ही आता ना बेटा। तो विल द नेम चेंज ना बेटा, नो ना। So no rule to be followed. So what will happen beta? Can you see here chlorine I have put here across the double bond, एक H जाएगा एक Cl. No rule to be followed. क्या क्या ऐड हो गया, हाइड्रोजन एंड हेलोजन दोनों ऐड हो गया ना, इसलिए व्हाट वी कॉल इट एज हाइड्रो हेलोजिनेशन। हाइड्रो हेलो, लुक बेटा ये ब्रेक होगा। सिमेट्रिकल एल्कीन है ना बेटा। देख HBr मैंने ऐड किया तो देख, ठीक है H इधर जाएगा, Br इधर जाएगा, देखा। तू बोलती सर मैं Br को अगर यहाँ पे भेजती तो, अरे तू बेटा अगर इसको यहाँ पे भेजती तो यहाँ पे Br आ जाता और यहाँ पे क्या आ जाता, H। नाम चेंज होगा क्या, बोल बेटा। तो मैं यहाँ से नेमिंग दूंगा ना, टू ब्रोमो ब्यूटेन, आर यू गेटिंग इट। तो बोलेगी नहीं सर ये वाला यहाँ पे मुझे ऐड करना है, तो यहाँ से तू काउंट करती बेटा। तो नाम चेंज हुआ क्या फाइनल प्रोडक्ट का। तो सिमेट्रिकल में नाम चेंज नहीं होता है, तो आई कैन ऐड एनीवेज, आई कैन ऐड या। अच्छा, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में ऐसा क्यों लिखा है, HI इज मोर रिएक्टिव देन HBr देन HCl। हाँ 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 क्यों। अच्छा मेरे को बता बेटा, डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज चेंज होता है कि नहीं। अच्छा हाइड्रोजन का साइज चेंज होगा क्या, डाउन द ग्रुप इन पीरियोडिक टेबल एज यू गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज चेंजेस। तो बेटा क्लोरीन का साइज, ब्रोमीन का साइज और बड़ा होगा कि नहीं, आयोडीन का और बड़ा होगा कि नहीं। तभी आप मेरे को बताएं इन दोनों के बीच में बॉन्ड कहाँ पर है, ये देखिए बॉन्ड काफी दूर दूर है ना, तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, कम होगा कि नहीं। तो दिस विल ब्रेक इजिली। भूल गई कि हम लोग ने अल्केन में पढ़ा था डायरेक्ट आयोडीनेशन इज नॉट पॉसिबल, याद आ रहा है कि नहीं। हाँ तो दिस बॉन्ड विल ब्रेक इजिली ना बेटा इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम इज, हाँ देयरफॉर वी से HI इज मोर रिएक्टिव। क्लियर। प्रॉब्लम अब कहाँ पे आएगा, हाँ अभी देख बेटा ये प्रोटीन है, डबल बॉन्ड के लेफ्ट में देख और राइट में देख, सेम है क्या। अच्छा सपोज बेटा अभी ना हम लोग हेलोजन ऐड कर रहे हैं ना, ये व्हाट वी आर एडिंग हाइड्रोजन एंड हेलोजन। अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हेलोजन को तो क्या हो जाता, बोलो बेटा फर्स्ट कार्बन पे, तो 1 पे आता ना बेटा। लेकिन कोई बोलेगा नहीं सर मुझे यहाँ पे ऐड करना है, अगर हम यहाँ पे ऐड करते तो कहाँ पर आता, बोल बेटा 2 पे हेलोजन आता कि नहीं। नाम चेंज हो रहा है, ओ माय गॉड। तो करने का क्या, सुनकर, करने का क्या, देख भाई यहाँ पे अगर मैं भेजता तो 1 पे आता था, यहाँ पे जाता तो कहाँ पे आ रहा है 2 पे। So therefore scientists came up with one rule. Which rule? Markovnikov rule. He was a Russian chemist. Okay? ये देख अनसिमेट्रिकल है ना बेटा, तो देख मैं HBr ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। आई विल गेट 2 पॉसिबिलिटी, लुक हियर।
अरे चलना भाई, देख ब्रोमीन मैंने कहाँ पे डाला, बीच वाले पे डाला, बीच वाले पे डाला तो कहाँ पर आएगा, इधर पे आएगा कि नहीं, और एच वहां पे गया तो क्या बनेगा, 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब मैंने क्या किया सेकंड केस में बेटा, देख ब्रोमीन को मैंने कहाँ पे भेजा, फर्स्ट पे भेजा, तो नाम क्या हो जाएगा देख बेटा, ओ माय गॉड 1 ब्रोमो प्रोपेन, बराबर है। करने का क्या, कौन बनेगा अभी यहाँ पर, अभी यहाँ पे रूल फॉलो करना पड़ेगा, 1 या 2 में तो कौन बनेगा, नहीं नहीं मैं सब बताता हूँ। ओके, तो इसमें हम लोग एक रूल फॉलो करेंगे बेटा, कौन बनेगा अभी मेजर, क्या करने का बोल बेटा, राइट ना। तो अभी हम लोग का क्या करने का, वी हैव टू फॉलो व्हाट रूल, और वो रूल क्या है, मार्कोनिकॉफ रूल। ओके, मार्कोनिकॉफ ने क्या बोला, पढ़ लो यहाँ पर, व्हेन एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन रिएक्ट्स विद एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन था कि नहीं बोल बेटा, ये रिएजेंट को अनसिमेट्रिकल क्यों बोला, बिकॉज एच पॉजिटिव होता है और बीआर क्या होता है, नेगेटिव। Then the negative part of the reagent will get added to the carbon atom containing, तो लेस किस में, इस पे कितना है, अक्रॉस द डबल बॉन्ड ना, ये मत देखना, इस पे तो 3 है, उसको देखनी ये है क्या, उस पे डबल बॉन्ड था क्या, ये वाले पे कितना हाइड्रोजन है बोलो, इस पे कितना है, 3 नहीं है, इस पे कितना है, एक ही है। अरे बाबा ये जो हाइड, अच्छा चलो मैं इसको स्प्लिट करके लिख देता, ये इस पे हाइड्रोजन है बेटा, अरे गेटिंग इट, तो इस पे तो बेचारे पे एक ही है ना, हाँ तो किस पे जाएगा, लेस वाले पे जाएगा, और वो क्या बनेगा, मेजर। हाँ तो 2 ब्रोमो प्रोपेन, वेरी गुड, कौन मेजर बनेगा तेरा, हाँ ये देखो मेजर है, और वो क्या है, माइनस। व्हाट इज द मार्कोनिकॉफ रूल, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा उसको सपना आया क्या ऐसे लेस, रूल बनाया उसके पीछे लॉजिक भी होगा कि नहीं, लेस के पास ही क्यों जाता है, वो भी मैं तुमको बताऊंगा, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अभी आप मेरे को बताओ, यहाँ पर देख मैंने यहाँ पर अच्छे से दिया है, आपके नोट्स में भी दिया है बेटा, डोंट वरी, देख नोट्स में हम लोग ने देखो ये अल्कीन किया था ना, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल, देख सिमेट्रिकल में कोई रूल फॉलो होता है क्या बेटा, देख डायरेक्ट एडिशन लिखा है, देख रहा है ना, मैं कहाँ पे भी भेज सकता था, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा था बेटा, देख असिमेट्रिक में रहेगा तो हम लोग को क्या फॉलो करना पड़ेगा, मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है ना, और देख रूल यहाँ पे मैंने लिख दिया बेटा। अच्छा यहाँ पे अभी देख बेटा, ये तेरा ब्रोमीन कहाँ पे जाएगा, इस पे कितना हाइड्रोजन है, बोलना, 1 हाइड्रोजन, इस पे कितना हाइड्रोजन है, तो नेगेटिव पार्ट कौन है इसमें, ब्रोमीन नेगेटिव होता है ना, हेलोजन, तो कहाँ पे जाएगा वो, मेजर के लिए लेस वाले पे जाएगा, बरोबर है, और एच कहाँ पे जाएगा, मोर वाले पे, तो देखिए मेजर बना, और ये क्या बना, समझ में आ गया बेटा, क्लियर, राइट ना। थोड़ा आपको है ना ये इसका है ना पूरा, मैं तुमको ना मैकेनिज्म भी बताऊंगा, उससे पहले आप मेरे को बताओ, चलो यहाँ पे देख मैंने यहाँ पे लिख के भी दिया, ये वाला भी मैं ना स्क्रीनशॉट आपको भेजूंगा, देखो बेटा यहाँ पे आ जाओ, ओ क्या कर दिया, नींद आ रही है बेटा, ओके चलो, first see here with all of you, I hope all of you can see this, 12th में बेटा आई बी गिविंग यू दिस टाइप ऑफ, दिस इज माय 12th का नोट्स, ऐसा कलरफुल नोट्स आपको मिलेगा, ठीक है, फॉर ऑर्गेनिक, ये देख बेटा एच और बी आ रहे हैं ना बेटा, हेलो, राइट, चल मेरे को बताइए सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल है धैर्य, तो देख यहाँ पे मैंने इसी पे लिख दिया है, देख ना, नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन कैरिंग लॉ, यहाँ पे लिख दिया, मार्क एरो पे आपको मार्कोनिकॉफ रूल लिखना पड़ेगा, क्लियर है ना, यहाँ पे जाएगा लेफ्ट वाले पे। चलो धैर्य अभी यहाँ पे देख ले, सोचे नहीं आ बेटा, यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितना है बोलो बेटा, 3 है, सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल है, अच्छा इस पे कितने हाइड्रोजन है बोल बेटा, 2, ये वाले पे कितना हाइड्रोजन है तेरे को, एक भी हाइड्रोजन दिख रहा है क्या, क्योंकि देख नहीं ये भी कार्बन है ये भी कार्बन है, तो 0 हाइड्रोजन, तो ये तेरा क्या हो गया, मोर हो गया, ये क्या हो गया तेरा, तो कहाँ पे जाएगा तेरा नेगेटिव पार्ट, वेरी गुड, तो देख ये वाला देख यहाँ पे गया ना बेटा, तो एच का इधर पे जाए, तो देख ये तेरा क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या बनेगा, क्लियर है, एनी डिफिकल्टी क्लियर, चले सोन का रिकड़े बाग, ये देख एच बी आर है, देख डबल बॉन्ड के इस तरफ देख और इस तरफ देख, क्या सेम है क्या अलग है, अलग, हाँ तो अभी तेरा नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा, इस पे कितना हाइड्रोजन है, इस पे कितना हाइड्रोजन है, बस ये मत देखना ये हाइड्रोजन, अगर ये मैं ऐसा लिखता बेटा, आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये इस पे होता है, कार्बन का 4 हाथ होना चाहिए ना बेटा, तो किस पे जाएगा बोल, 1, तो देखिए तेरा देख 1 पे क्या, तो देख मेजर प्रोडक्ट, और ये क्या बनेगा, एक चीज आपने नोटिस किया, जब भी आपने मार्कोनिकॉफ रूल किया तो आपको क्या मिला,
इसको क्या बोलते थे, देखिए फंक्शनल ग्रुप कार्बन को अटैच है, आगे जाके किससे अटैच है, दो से, तो ये सेकेंडरी हुआ कि नहीं। ये फंक्शनल ग्रुप है, ये देख कार्बन को जाकर अटैच है, ये कार्बन आगे जाके कितने से अटैच है, 1 2 और 3, तो टर्शरी हुआ कि नहीं बोलो। तो मार्कोनिकॉफ रूल होगा ना, तो विल ऑलवेज गेट सेकेंडरी और टर्शरी एज अ मेजर प्रोडक्ट, सेकेंडरी और टर्शरी ही मिलेगा, प्राइमरी मेजर मिलेगा नहीं। ये देखो, देखो ये सब दिया है यहाँ पे बेटा, देख रहा है, देखो ना, ये देखिए ये वाला एग्जांपल भी है, ये जो मैं कलर में दिखा रहा हूँ वो यहाँ पर भी है बेटा, दिख रहा है ना, देख यहाँ पे मेजर लिखा है, समझा ना। ओके, ऐसा क्यों हुआ वो भी मैं तुमको रीजन बताता हूँ, चलो। लेस वाले के पास ही क्यों गया, हेलो, लेस वाले के पास ही क्यों गया। हम लोग ने बेटा पता है ऐसा कुछ पढ़ा था रिएक्शन बेसिक, अभी एग्जाम में क्या क्या आएगा तुम लोग, पहला पहला एकदम रिएक्शन बेसिक का आपको पार्ट बता देता, वी हैव डन दिस। जब भी बेटा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होके दोनों तरफ अगर सिंगल हो जाएगा, तो इट इज विच एडिशन, विच एडिशन। तो बेटा अभी मैंने यहाँ पे क्या लिया था, HCl लिया था ना, HX लिया था, तो यहाँ पे H आता था, यहाँ पे X आता था कि नहीं बोलो बेटा। तो मार्कोनिकॉफ रूल इज विच एडिशन है, वो पैरेट आता है बैठता है बेटा, डोंट वरी, पोपट, हाँ वो पैरेट है, ठीक है ना बेटा। अच्छा, विच एडिशन इट विल बी, एग्जाम में पहला क्वेश्चन पूछेगा मार्कोनिकॉफ, जो हम लोग ने हाइड्रो हेलोजिनेशन किया, इट इज विच एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, विच एडिशन। अच्छा, अभी इसमें एक छोटा सा आपको जानने की जरूरत है बेटा, ये देखो बेटा, ये कार्बोकटायन का मैंने स्टेबिलिटी बताया था, सुनकर बेटा नहीं समझेगा बाद में, यहाँ पे देखना बेटा, ये देखिए कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, कार्बोकटायन। जिया कुछ ऑर्गेनिक किया था क्या पहले तूने कभी, थोड़ा बहुत भी, नो, 10th में, अच्छा 11th में हुआ ही नहीं है, ओके नॉट अ प्रॉब्लम बेटा, डोंट वरी, आई बी डूइंग दिस, इसका मैं तेरे को ना सब वीडियोस भी है मेरे पास, बट पहला खाली इतना ध्यान रख, ये देखिए कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है ना, तो उसको पॉजिटिव जो होता है उसको क्या बोलते हैं, कटायन। कुनार बेटा यहाँ पे देख, कटायन, ये कार्बन आगे जाके कितने से अटैच है, इसको प्राइमरी कार्बोकटायन बोलते हैं, ये कार्बन आगे जाके कितने से अटैच है, देख बेटा, ये भी कार्बन और ये भी कार्बन है ना, दो, तो इसको क्या बोलते हैं, ये कार्बन आगे जाके कितने से अटैच है, टर्सरी। और हम लोग ने पढ़ा था ना, विच कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल, अभी आप लोग ने एग्जाम भी दिया था ना, टर्सरी कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल, फिर सेकेंडरी, फिर तो लाइफ में अगर मैं कार्बोकटाइन, अगर मुझे मौका मिल रहा है रिएक्शन में प्राइमरी कार्बोकटाइन बनने का या सेकेंडरी, तो मैं क्या बनना पसंद करूंगा, मोर स्टेबल कौन है प्राइमरी और सेकेंडरी में, सेकेंडरी। अगर एक रिएक्शन हो रहा है, मुझे पॉसिबिलिटी मिल रही है टर्शरी बनने का और सेकेंडरी बनने का, तो मैं क्या बनना पसंद करूंगा, नहीं सेकेंडरी और टर्शरी देगा तो, अरे मोस्ट स्टेबल ना बेटा, हाँ, ये एक दिमाग में गया, याद रखना, इसी पे ना मार्कोनिकॉफ रूल है पूरा, समझ में आया ना। चलो बेटा, अभी मैं मार्कोनिकॉफ रूल का मेन तुमको बताते, मेकेनिज्म, बेटा ये जानना जरूरी है, वरना आप खाली बाय हार्ट करोगे ना तो मजा नहीं आएगा, क्यों हो रहा है वो जानना जरूरी है कि नहीं बोलो बेटा। देख बेटा, ओए यहाँ पे देखो, मैंने क्या लिया था बोलो स्टार्टिंग में बेटा, अनसिमेट्रिकल अल्कीन लिया था कि नहीं, अनसिमेट्रिकल अल्कीन तुम्हारा क्या था बोलो बेटा, अच्छा हम लोग मार्कोनिकॉफ रूल में क्या ऐड करते हैं, हाइड्रोजन और हेलोजन ऐड करते कि नहीं, ये देख बेटा मैंने हाइड्रोजन और हेलोजन लिया, ये हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये ब्रेक होके क्या देगा, H+ देगा, और क्या देगा, X। ये जो से पॉजिटिव चार्ज होता है, मेरे पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो मैं किससे प्यार करूंगा, इलेक्ट्रॉन से या न्यूक्लियस से, मेरे पास अगर पॉजिटिव चार्ज है तो न्यूक्लियस से, अरे बाप मेरे पे न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है, तो मैं इलेक्ट्रॉन से प्यार करूंगा ना, तो जो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, इसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग, इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन, फर्स्ट स्टेप। देखो हम लोग रिएक्शन ऐसे लिखते हैं, ऐसा मैकेनिज्म होता है, क्या हो गया इलोनी बेटा, अच्छा इलेक्ट्रोफाइल, राइट। अभी हम लोग ने क्या लिया बोलो बेटा, प्रोपीन लिया है कि नहीं, हेलो, प्रोपीन ऐसा होता था, प्रोपीन मैं तुमको ऐसा स्प्लिट करके बताता, ये ले भाई, ठीक है। अब बेटा ये प्रोपीन में बेटा ये कौन सा बॉन्ड है बोलो बेटा, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड वीक होता है कि नहीं, ये वाला पाई बॉन्ड है ना बेटा, ये लाल कर करके दे देता हूं, ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक है, तुमको पता है हम लोगों ने पढ़ा था, ये इधर पे भी जा सकता था या तो ये इधर पे भी जा सकता था, भूल गए तुम लोग, ये देख टेंशन मत ले, कहाँ पे पढ़ा था रिएक्शन बेसिक्स में, अरे राजा क्या है देख रहे,
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, ये लेफ्ट में भी जा सकता है या तो ये राइट में भी जा सकता है। आ जाओ अभी तक। ए सपोज बेटा मैंने इसको लेफ्ट में भी भेजा और राइट में, मैंने दोनों पॉसिबिलिटी कवर कर लिया। कितना पॉसिबिलिटी कवर कर लिया? बोथ। चल पहले मैंने इसको कहाँ पे भेजा, यहाँ पे मैं लेफ्ट में भेजूंगा, यहाँ पे मैं कहाँ पे भेजूंगा, राइट। तो चलो अगर मैं लेफ्ट में भेजूंगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पता है ना बेटा। तो चलो मैंने इसको कहाँ पे भेज दिया, लेफ्ट में। लेफ्ट में भेजेगा तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कि नहीं बोलो बेटा, और इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा कि नहीं। अब ये सिंगल हो गया कि नहीं बोलो बेटा, और यहाँ पे से इलेक्ट्रॉन इसके पास गया ना बेटा, आई एम सेंडिंग दिस इलेक्ट्रॉन पेयर हियर, तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और इस पे क्या आ जाएगा। अच्छा अगर मैंने इसको राइट में भेज दिया रहता तो क्या होता था बोलो, अरे बोलो भाई। राइट में मैं भेज देता तो इस पे क्या चार्ज आ जाता था बोलो बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आता ना, इस पे क्या आ जाता था, नेगेटिव, और इस पे क्या आ जाता था। अच्छा ये पहले स्टेप में कौन जनरेट हुआ है बोलो बेटा, इलेक्ट्रोफाइल ना। इधर देखे भाई धैर्य टू, इधर देख इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे पॉजिटिव है ना, तो ये कहाँ पे अटैक करेगा, इधर पे देख। इसमें जाता तो इधर पे अटैक करता था कि नहीं, यहाँ पे देख नेगेटिव, उसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ना। और अगर इधर पे होता तो कहाँ पे अटैक करता, इस पे अटैक करता। अब ये देख इधर इधर पे जाता तो ये दोनों एच ले लेता था कि नहीं है, तो यहाँ पे क्या बन जाता था बोलो बेटा, CH3, और ये यहाँ पे H, और यहाँ पे भी एक H आ गया, और ये क्या बन जाएगा तेरा, CH2 ऐसा ही रहेगा, और इस पे कितना चार्ज है बोलो बेटा, पॉजिटिव। अगर ये H इधर पे जाता तो क्या होता था बोल बेटा, अरे बोलो ना। ये ये पॉजिटिव ही रहता, ठीक है ना, और ये CH2 है और एक H आ गया ना, तो क्या बन जाता, CH3 हो जाता। समझ में आया कि नहीं। अब आप यहाँ पे गौर से देखो, ये तेरा कार्बन है, आगे जाके एक कार्बन से अटैच है कि नहीं, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज व्हाट, कार्बोकटायन। अच्छा ये आगे जाके एक से अटैच है, तो ये कौन सा कार्बोकटायन बन गया, प्राइमरी, और दिस इज प्राइमरी कार्बोकटायन। अब ये तेरा कौन सा हो गया बेटा, ये देख रहा है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है कि नहीं। ये आगे जाके कितने से अटैच है, हिलोनी बेटा, 2 से ना, तो सेकेंडरी हो गया कि नहीं। विच कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल। अरे वाह, इतना दिमाग में गया कि नहीं। मतलब जब मैं ये करता हूँ ना अनसिमेट्रिकल में, तो मेरा 2 कार्बोकटाइन बनेगा, प्राइमरी सेकेंडरी या सेकेंडरी टर्शरी, इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी बने। लाइफ में कौन ज्यादा स्टेबल है, हाँ मतलब इन दोनों में प्राइमरी और सेकेंडरी में, तो ये मोस्ट स्टेबल है कि नहीं बोलो बेटा। अच्छा अभी हम लोग ने स्टार्टिंग में हम लोग ने क्या लिया था, हाइड्रोजन और हेलोजन ना। पहले किसने अटैक किया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या था बोलो बेटा, इलेक्ट्रोफाइल, देयरफॉर इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब बचा कौन, ये नेगेटिव बचा है कि नहीं, कौन बचा है नेगेटिव। अब ये हेलोजन बेटा यहाँ पे जाएगा, अगर इधर पे जाएगा, इधर भी इधर पे कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है ना बेटा, देखना। तो हाइड्रो यहाँ पे हेलोजन इधर पे जाएगा। अच्छा ये वाले कार्बन पे कितना हाइड्रोजन अटैच था सिर्फ, इसलिए उसने बोला कि कार्बन नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकटाइन बन गया है, तो मोर वाला हाइड्रोजन सब ऑक्युपाइड हो गया है। समझ में आया। अच्छा इधर पे जाता तो ये हेलोजन कहाँ पे अटैक करता था बोल बेटा, इधर पे ना। बट ये ज्यादा स्टेबल है क्या, लेस स्टेबल है ना, इसलिए माइनर बनता था। अब समझ में आया। उसने ये वर्ड की यूज किया, नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, ये समझ में आया। उसके पीछे लॉजिक क्या था बोलो बेटा। हाँ नहीं नहीं, मार्कोनिकॉफ रूल उसने ये ऑब्जर्व करने के बाद बताया, लेस वाले पे जाता। अभी लेस वाले पे क्यों जाता है वो समझा क्या, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्लियर है। ओके। देख बेटा ये मैंने यहाँ पे ना 2-3 आपको जो नोट्स दिया ना, उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। यहाँ पर क्या दिया है बेटा देख, ओए मार्कोनिकॉफ रूल में बेटा हम लोग को जनरली क्या मिलेगा, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड मेजर बनेगा। ठीक है। अब बेटा मार्कोनिकॉफ रूल कैन टेक प्लेस विद एनी रिएजेंट, ओके। अब हमें हम लोग क्या करने वाले हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। कौन सा रूल करेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। चलो देख, अभी मैंने क्या किया पता है क्या, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल हम लोग करने वाले हैं। मार्कोनिकॉफ का उल्टा होगा उसमें, मेरे को था मार्कोनिकॉफ में नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाता था, तो कार्बन हैविंग लेस। तो एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या हो जाएगा, कार्बन हैविंग, भूल कर इसे कैसे, हाँ तो वो भी मैं बता रहा हूँ। तुमको कुछ पता है क्या बेटा, रिएक्शन बेसिक्स में मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताया था, सुन लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो टाइप ऑफ रिएक्शन।
जब भी बेटा कार्बन कार्बन क्या होगा, डबल बॉन्ड, याद आ रहा है ना, ये जीओसी किया था ना हम लोगों ने। और उसको अगर मैंने किसके साथ रिएक्ट किया, HBr, ए नोट्स दिया हुआ है तुमको सबको, HBr ही होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, पेरोक्साइड, HBr, और क्या होना चाहिए, ये दोनों ही, HBr ही होना चाहिए, HCl नहीं चलेगा, HI नहीं चलेगा, सिर्फ HBr ही होना चाहिए, और पेरोक्साइड, ये दोनों होना। तो अब यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक होगा और ये एडिशन होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, कौन सा एडिशन बोलते हैं, ये एमसीक्यू में पूछेंगे। क्या पूछेंगे कि एंटी मार्कोनिकॉफ में कौन सा मैकेनिज्म होता है, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, इट इज विच मैकेनिज्म। तो इसमें ऐसा क्या खासियत है कि फ्री, मार्कोनिकॉफ रूल वाज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, हियर इट विल बी व्हाट, फ्री रेडिकल। ओके इधर आ जाओ, देख, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है ना, किस किसने बनाया था, देखो, साइंटिस्ट का नाम क्या था, खराश, इसलिए इसका नाम क्या है, खराश इफेक्ट। इसमें हम लोग पेरोक्साइड यूज करेंगे, इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट, इसलिए यहाँ पे मैंने पहले भी लिख दिया फ्री रेडिकल एडिशन। ठीक है, कंडीशन क्या होना चाहिए बोलो, असिमेट्रिक अल्कीन होना, फिर क्या होना चाहिए, पेरोक्साइड होना चाहिए, या तो ये वाला कोई भी पेरोक्साइड होना चाहिए, नॉर्मल पेरोक्साइड और बेंजोइल पेरोक्साइड, पेरोक्साइड होना चाहिए, और HBr ही होना चाहिए, HBr ही होना चाहिए। तो अभी आप बोलोगे सर HCl और HI क्यों नहीं होना चाहिए, ओके, देख बेटा, HCl का साइज छोटा होता था, HI का साइज क्या होता था, बहुत बड़ा, तो अगर मैं HI डालता था ना, तो HI ब्रेक होके क्या बन जाता था, आयोडीन बन जाता था, तो मेरा फिर एडिशन होगा। अच्छा, HCl इतना छोटा होता है कि मेरा जो फ्री रेडिकल बनता है ना, पेरोक्साइड फ्री रेडिकल जनरेट करेगा, कैसे करेगा वो पूरा बताऊंगा। पेरोक्साइड बेटा फ्री रेडिकल जनरेट करता है, वो HCl को ब्रेक नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि HCl का बॉन्ड काफी स्ट्रांग है। देखो बेटा, जस्ट बाय हार्ट मत करो रिएक्शन, इसलिए मैं तुमको इतना माइन्यूट डिटेल में बता रहा हूं, वरना मैं बोल देता बस यहाँ पे लेस में जाता है, यहाँ पे मोर पे, मैं कुछ नहीं बताता वो स्टेबिलिटी बिबिलिटी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे बेटा, और आपको भी पता होना चाहिए ऐसा क्यों बोला उसने, राइट ना। तो HCl का बॉन्ड है ना बहुत स्ट्रांग होता है, बिकॉज उसका पीरियोडिक टेबल में देखना, साइज देखना छोटा है ना, एज यू गो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, तो फ्री रेडिकल उसको ब्रेक नहीं कर पाएगा। HI का इतना बड़ा आता है कि वो खुद ही ब्रेक हो जाएगा। हाँ, HBr का साइज देख बेटा, एकदम आइडियल है, फ्री रेडिकल को ब्रेक करने के लिए क्या है बोल बेटा, उसका साइज क्या है, क्लियर है। तो वो फ्री रेडिकल, इसलिए हम लोग एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में सिर्फ और सिर्फ क्या होना चाहिए बोलो, HBr एंड पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड नहीं लिखा है और HBr लिखा है तो कौन सा रूल हो जाएगा बाय डिफॉल्ट, मार्कोनिकॉफ। अच्छा, पेरोक्साइड लिखा और HCl लिखा है तो भी मार्कोनिकॉफ, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के लिए पेरोक्साइड और HBr दोनों होना चाहिए, ऐसा एमसीक्यू में बहुत बार पूछते हैं, एरो पे लिख देंगे पेरोक्साइड, और लेकिन वहां पे ना HBr नहीं दिया रहेगा, HCl दे देंगे, तो आप बच्चों का क्या आदत होता है, अरे पेरोक्साइड दिखा मतलब एंटी मार्क, ऐसा नहीं, देखने का पेरोक्साइड और HBr दोनों होना चाहिए, क्लियर है। अब आ जाते हैं, अभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल ने क्या बोला, उल्टा होता है, देख मैंने यहाँ पे देख HBr ही लिया है और पेरोक्साइड ले लिया, तो अभी अपने पास दो ऑप्शन था कि नहीं बोल बेटा, या तो ब्रोमीन इधर पे जाता या तो ब्रोमीन इधर पे जाता, देख मैंने बीच वाले पे डाला तो 2 ब्रोमो, और इस पे आ रहा तो 1 ब्रोमो, तो अभी मेजर प्रोडक्ट कहाँ पे होगा बेटा, ये वाले पे कितना हाइड्रोजन है बोल बेटा, मोर है ना, और ये वाले पे एक ही हाइड्रोजन है, तो ये क्या है बोलो बेटा, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में उल्टा होगा ना, तो वेयर द नेगेटिव पार्ट विल गो, हाँ विल गो टू द कार्बन हैविंग, इसलिए ये देख मोर मेजर। तो एक चीज सीखने मिला कि नहीं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हमेशा तुमको क्या मिलेगा, देखिए आगे जाके एक से अटैच है ना, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड भी नहीं, प्राइमरी अल्काइल हेलाइड नहीं बेटा, क्या बोलेंगे, अल्काइल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड ही क्यों बोला, क्योंकि वो ब्रोमाइड के साथ ही पॉसिबल है, इट गोज टू द मोर, ये देख बेटा, टन टन टन, अपोजिट ऑफ मार्कोनिकॉफ रूल, तो उसका क्या क्या नाम है बोल बेटा, पेरोक्साइड इफेक्ट, दूसरा नाम क्या है बोलो बेटा, खराश इफेक्ट, तीसरा नाम क्या है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, क्लियर। अभी एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कैसे होता है, देख, इट इज अप्लीकेबल ओनली विद व्हाट, क्या लिखा है, दो कंडीशन, उसका क्या है बोलो, एन पेरोक्साइड ओनली, बाकी कोई चलेगा नहीं, ठीक है, ओके, इधर पे आ जाओ, ये देख रहा है बेटा, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का देखा ना, ये तेरा मेजर, यहाँ पे मेजर पे ध्यान दो, ये भी बेटा अनसिमेट्रिकल है, चलो ये डबल बॉन्ड है, इस पे कितने हाइड्रोजन है, दो, इस पे एक, तो किस पे जाएगा बेटा, इस पे,
मोर वाले पे जाएगा ना बेटा, और एरो पे लिखने का AMR। जब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा और HBr होगा तो AMR लिखने का। यहाँ पे भी मेजर ये वाला होगा ना बेटा, इथेन, समझ रहा है ना बेटा? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का शॉर्ट फॉर्म। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का क्या है वो बेटा? शॉर्ट फॉर्म। अब बेटा मैं तुमको टेक्स्ट बुक में बताता बेटा व्हाट ऑल थिंग आई हैव डन। लुक टेक्स्ट बुक में बेटा वी स्टार्टेड फ्रॉम पेज नंबर 239। हाँ हाँ, ब्रेक देता हूँ ना बेटा, रुक जाना बेटा, ये करने देना बेटा, थोड़ा सा रुक जा, मैं दूंगा बेटा ब्रेक। अल्कीन है, अल्कीन यहाँ से स्टार्ट किया था हम लोग ने पेज नंबर 239। वी डिड ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ये वो सब, ये प्रिपरेशन वगैरह सब कर दिया था हम लोग, बराबर है। फिर हम लोग ने डिहाइड्रेशन किया, डी हेलो हेलोजिनेशन, फिर एडिशन रिएक्शन हम लोग ने ये सब किया था, याद आ रहा है ना बेटा? कौन सा था? लिंडार्स वाला था, बर्च रिडक्शन। फिर फिजिकल प्रॉपर्टी जानते, फिर हम लोग ने देखिए किया है हेलोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन। टुडे वी स्टार्टेड विद दिस हाइड्रो हेलोजिनेशन। फिर देख ये सिमेट्रिकल कहा था, नो रूल टू बी फॉलो। फिर देख बेटा यहाँ पे देख अनसिमेट्रिकल आया कि नहीं? अनसिमेट्रिकल में हम लोग ने कौन सा रूल फॉलो किया? मार्कोनिकॉफ्स रूल। We can write Markovnikov in different manner. He was a Russian chemist. फिर देख, we did एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का अलग अलग नाम है, पेरोक्साइड इफेक्ट, खराश इफेक्ट और मायो इफेक्ट। ये देख बेटा एंटी मार्कोनिकॉफ यहाँ पे मैंने दिया है, ये देख रहा है, खराश इफेक्ट, मायो इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट, एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ में क्या लिखा है? नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन कैरिंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दिखाई दे ना मोर पे, एंड इट विल गिव यू सेकंड, इट विल ऑलवेज गिव यू विच अल्काइल हैलाइड? प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड, प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड। तो यहां तक हम लोग ने किया ये बेटा, देख रहे हैं ना बेटा, ये पूरा मैंने आपको अच्छे से बता दिया। क्लियर है? राइट बेटा? ओके। ब्रेक चाहिए क्या 5 मिनट का? हाँ तो चलो। अरे 11 बजे आने का है तो बेटा फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं ना, ब्रेक भी अच्छा 2 मिनट का ब्रेक देता हूँ, ठीक है? नीचे मत जाओ तुम लोग, ठीक है? ओके या बेटा, वी डिड मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अभी हम लोग क्या करने वाला है? एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड वाटर। तो पहले मैं डायरेक्ट वाटर ऐड नहीं करूंगा, पहले मैं क्या ऐड करूंगा बेटा? सल्फ्यूरिक एसिड। पानी मतलब हाइड्रा, एशन मींस एडिशन। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? H2SO4। इथेन बेटा देखिए H2SO4। कैन आई राइट H2SO4 दिस वे बेटा? ऐड करना बेटा, H2 हो गया। तुमको पता है H ये पॉजिटिव पार्ट होता है और ये वाला पार्ट क्या होता है बेटा? नेगेटिव। तो ये अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है कि नहीं? जैसे HBr HCl होता था वैसे। अब बेटा सिमेट्रिकल में तो कोई रूल फॉलो करना पड़ेगा क्या तुझे? नहीं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव तू कहां पर भी भेज सकती थी बेटा, तेरा मर्जी, इसको तूने यहाँ पे भेज दिया, इसको यहाँ पे भेज दिया, नो रूल टू बी फॉलो। तो भी बेटा ये देखना, ये क्या बन जाएगा? इथाइल। अच्छा ये वाले पार्ट को हम लोग क्या कहेंगे? SO3H को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, HS, और O कितना है बोल बेटा? 4 है ना? इसको क्या बोल देते हैं? सल्फेट। और ये क्या? हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन सल्फेट। और क्या हो जाएगा? इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। क्लियर है? अब सेकेंड स्टेप, अब मैं पानी ऐड करूंगा, पहले मैं पानी डायरेक्ट ऐड नहीं करता, अब मैंने पानी ऐड किया। पानी ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा? वापस ये देख रहा है ये वाला पार्ट, ये क्या बन जाएगा? H2SO4। और OH यहाँ पे जाके चिपक जाएगा, तो क्या बन गया? अल्कोहल। मतलब इथीन के अंदर इफ आई ऐड हाइड्रेशन, आई कैन नॉट डू डायरेक्टली, फर्स्ट आई ऐड सल्फ्यूरिक एसिड एंड देन आई ऐड वाटर, सो आई गेट अल्कोहल। ना मनास, डिहाइड्रेट कहाँ गया भाई? ऐड किया ना बेटा, डिहाइड्रेशन तो, अरे H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता था, लेकिन वो अल्कोहल में से पानी निकालता था। बट ये क्या है? ये तो अल्कीन है ना, यहाँ पे पानी है ही नहीं ना, तो वो एडिशन करवा रहे हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो ऑलवेज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। भूल गई क्या? अभी बताया था ना, खाली एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में क्या था? फ्री रेडिकल। अब इधर आ जा, मन्नास ना बेटा, मन्नास के मानस, मानस। अच्छा ये मानस बेटा, ये भी सिमेट्रिकल है। अरे देखना बेटा, ये तेरा पॉजिटिव है, ये तेरा नेगेटिव, ये देखना दोनों तरफ सेम सेम है ना। तो तू कहाँ पे भी है, तूने H को यहाँ पे भेज दिया और इसको यहाँ पे भेज दिया। तो देखिए तेरा कार्बन है, आगे जाके 2 से अटैच है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा? सेकेंडरी। टोटल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4, सो इट इज नोन एज सेक ब्यूटाइल हाइड्रोजन सल्फर। अब मैं इसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करूंगा तो ये H और ये देखना H2SO4 बन जाएगा कि नहीं? तो देख तेरे को यहाँ पे ओ, अभी यहाँ पे OH आ जाएगा इसकी जगह पे, तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। 1 2 3 4, 2 पे और ब्यूटेन, 2 और आई कैन कॉल इट एज सेक ब्यूटाइल अल्कोहल। क्या आई कैन कॉल इट एज? अभी देख बेटा ये वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, असिमेट्रिकल आ गया। मानस बेटा असिमेट्रिकल है बेटा, देख रहे हैं डबल बॉन्ड है यहाँ पे, लेफ्ट में और राइट में अलग अलग है कि नहीं बोल? इसमें कितने हाइड्रोजन है? 2। इसमें कितना हाइड्रोजन है? 1। अभी बेटा ये पॉजिटिव और नेगेटिव, अब मेरा नेगेटिव पार्ट कहाँ पे जाएगा?
हाँ, इसलिए मुझे एरो पे लिखना पड़ेगा। जब भी अनसिमेट्रिकल होगा तो एरो पे क्या लिखने का बेटा? मार्कोनिकॉफ रूल। देन माय नेगेटिव पार्ट विल गो टू द कार्बन हैविंग लेस नंबर, इधर पे जाएगा। कहने का मतलब इन शॉर्ट क्या है पता है क्या बेटा? अगर तू अनसिमेट्रिकल अल्कीन लेगी तो तेरे को हमेशा क्या मिलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा या तो टर्शियरी। फिर देख, इसको उठा के वापस यहाँ पे रखा और वापस पानी डाला तो देखिए H2SO4 यहाँ से चला जाएगा और OH इधर पे जाएगा, तो तेरे को अभी कौन सा अल्कोहल मिला देख रहा है? सेकेंडरी मिला। इथीन होता था, इथीन गिव्स ओनली प्राइमरी अल्कोहल, बाकी सब क्या देगा? सेकेंडरी या टर्शियरी। ये हाइड्रेशन हो गया तेरा बेटा। देख अभी मैंने ये क्या लिया है? कोनार्क बेटा, ये देख ये क्या है? आइसोब्यूटिलीन। सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है बोल? असिमेट्रिक। इस पे कितना हाइड्रोजन है बोल बेटा? वेरी गुड। इस पे कितना हाइड्रोजन है ये वाले पे? एक भी नहीं है, देखना जीरो। तो ये तेरा नेगेटिव पार्ट अभी कहाँ पे जाएगा बेटा? ये OH नेगेटिव होता है, RH पॉजिटिव होता है, तो OH डायरेक्ट किधर पे जाएगा? लेस वाले पे। तो ना, तो टर्सरी मिला के नहीं बोल बेटा? यहाँ पे मैंने डायरेक्ट पानी ऐड करा, ऐसे ही बता दिया डायरेक्ट पानी, वो H2SO4 लिखा नहीं बेटा। ठीक है ना? एरो पे लिखा है बेटा। अरे टू स्टेप को डायरेक्ट वन स्टेप में आपको बताया। देख, एडिशन ऑफ वाटर molecule across the double bond takes place according to which rule? Markovnikov. It is useful to prepare which alcohol? सेकेंडरी एंड टर्शरी। खाली तेरे को प्राइमरी अल्कोहल कब मिलता था? ओनली प्राइमरी अल्कोहल प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड इज विच वन ओनली? इथाइल अल्कोहल। बरोबर है। अब बेटा ये चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रिएक्शन है, दैट इज ओजोनोलाइसिस। ये आएगा ही तुम्हारे स्कूल का मतलब कॉलेज के एग्जाम में आएगा ही, ओजोनोलाइसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओजोनोलाइसिस, ओजोन का मतलब क्या होता है पहला सुन ले बेटा। एक तो मैं तुमको ट्रिक बता देता इसको क्या होता है। ओजोनोलाइसिस, ओजोनो। अच्छा मैं तुमको पहले बता देता टेक्स्ट बुक में क्या कवर किया। सिया, ये देख, टेंशन मत ले, तू टेक्स्ट बुक देख रही है कि क्या देख रही है? देख, ये देख, अभी मैंने सल्फ्यूरिक एसिड का बता दिया, दिखाई दे रहा है ना? पूरा बता दिया सब। अब मैं ये ओजोनोलाइसिस बता रहा हूँ, ठीक है? ओजोनोलाइसिस का ट्रिक क्या है बेटा? मस्त बता देता है। बैक 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 ये सब। हाँ ये, oh yeah, I'll teach you trick। मस्त, पहले मैं मेरे स्टाइल में बता देता हूँ। देख, ओजोनोलाइसिस, ए भाई, ओजोनोलाइसिस इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। पहला स्टेप होता है ओजोन, ओजोन मतलब O3, एडिशन ऑफ ओजोन होगा पहला। और लाइसिस का मतलब क्या होता है बोल बेटा? स्प्लिटिंग। ए भाई, लाइसिस का मतलब क्या है? स्प्लिटिंग। तो बेटा मैं पहले ओजोन ऐड करूंगा फिर उसका स्प्लिटिंग करूंगा, ठीक है ना? इसलिए ओजोन टू स्टेप रिएक्शन। ये देखिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, इसके अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे? ओजोन। क्या ऐड करेंगे पहले? ओजोन। तो ये ओजोन क्या करेगा बेटा? इसके बीच में एंटर करेगा, देखिए से। सॉरी, ये देख, ओ ओ ओ ओ ओ, दिख गया? ये देख, तीन ओ घुस गए के बीच में, देख ना यहाँ पे डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, दिखा है ना? इसको कहते हैं ओजोनॉइड। क्या बोलते हैं? ये कंपाउंड का नाम क्या है बोल बेटा? ओजोनॉइड। तो अगर मैंने इथीन लिया तो इथीन ओजोनाइड, प्रोपीन लिया तो प्रोपीन ओजोनाइड। अब बेटा सेकंड स्टेप में मैं क्या करता हूं? इसके अंदर पानी डालूंगा, हाइड्रोलाइसिस, पानी डालूंगा। देख, पानी H2O। ये देख बेटा, H2 डालूंगा ना तो ये O और ये H2 रिएक्ट होके क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन, लेकिन बेटा हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है ना, वो बहुत हाईली पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मुझे हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने देना नहीं है। इसलिए मैं एरो में यहाँ पे क्या लिखता हूँ? जिंक भी डाल देता हूँ। क्या डाल देता हूँ? जिंक का क्या काम है पता है क्या? वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड जैसे बनेगा ना, उसको ना जिंक ऑक्साइड और पानी में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब अभी मेरा जो प्रोडक्ट बचेगा वो सेफ रहेगा। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड रहता तो मेरा प्रोडक्ट को अटैक कर देता। कभी कभी पूछते व्हाट इज द रोल ऑफ जिंक। अब क्या होता है बेटा? देख, मेन ट्रिक अभी मैं तुमको बताता। डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट आपको फटाफट MCQ करने का रहेगा, तो कैसे करने का देख। इसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है पता है क्या बेटा? देख, ये ऐसा ब्रेक हो जाता है और ये वाला पार्ट ब्रेक हो, क्योंकि देख ना ये H2 उसके साथ गया ना। तो वो भी याद मत रखो, मैं तुमको और एकदम शॉर्टकट बताता। देख क्या करने का, ये जो डबल बॉन्ड है ना बेटा, फाइनल प्रोडक्ट रेडी करने का, जो डबल बॉन्ड, जो दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है उन दोनों को अलग कर दो। उन दो को क्या कर दो? अलग कर दो। और फिर क्या कर देने का? उन दोनों के पे ऐसा डबल बॉन्ड वो डाल दो, बस। ये तेरा फाइनल प्रोडक्ट है ओजोनोलिसिस का।
वो दोनों को जहां पे भी डबल बॉन्ड दिखेगा वो दोनों को अलग कर देने का, वहां पे क्या डालने का, डबल बॉन्ड हो। चल बेटा अभी मैंने तेरे को ना ये दिया एग्जाम्पल, आजा सुनकर स्टार्ट करते हैं, चले देख एक एक करके करते हैं। यहाँ पे बेटा मैंने तेरे को इथीन दिया है, क्या दिया है, इथीन। तो भी डायरेक्ट ये बीच वाला पार्ट देखी मत, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट में तू क्या करेगी, डबल बॉन्ड को गायब कर देगी, दोनों को अलग कर दिया। तो अभी यहाँ पे तेरा खाली क्या बचेगा, देख इस पे दो एच था ना, इस पे भी दो एच है, तो ये क्या बन गया बेटा पता है, फॉर्मल्डिहाइड, मिथेनॉल, 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 अगर इथिन लिया तो। चलो बेटा धैर्य, अगर मैंने यहाँ पे अगर CH3 डाला तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपीन, क्या बन जाएगा। बस तेरे को अभी पता है ये डबल बॉन्ड को तुझे क्या करना है, गायब करना है, अलग कर दे। हाँ देख तो ये क्या बनेगा, इथेनॉल, मिथेनॉल, मतलब एसिटाल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है धैर्य टू बेटा, ये देख मैंने अभी यहाँ पे क्या लिया, ब्यूटुइन, ब्यूटुइन हुआ ना, 1 2 3 4। तो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी खाली तेरे को खाली क्या लिखने का है, CH3, इथेनॉल, इथेनॉल। ठीक है राइट। अच्छा इलोनी बेटा ये देखिए यहाँ पे मैंने CH लिया है, 2 मिथाइल प्रोपीन ब्यूटीन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH3 आ जाएगा ना। तेरे को पता है ये कौन है, एसीटोन। अरे आप लोग नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हैं ना, कीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। अच्छा ये बेबी नैया, ये देख 2 पे मिथाइल 3 पे मिथाइल, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटुइन, तो तेरे को अभी यहाँ पे क्या मिलेगा, एसीटोन, एसिड। अच्छा लेकिन है ना एग्जामिनर यहाँ पे बहुत मस्त है, आपके एकदम दिमाग के साथ खेलेगा, वो क्या करेगा पता है, कि आपको प्रोडक्ट दे देगा, क्या दे देगा, इथेन, दे विल गिव यू द प्रोडक्ट, और आपको क्या बोलेगा, ओरिजिनल रिएक्टेंट ढूंढो, ऐसा बोलेगा, मैंने ओजोनोलिसिस किया, मुझे ये दो बंदे मिले, ये और ये मिला, ऐसा वो लोग दे देंगे, आई गॉट 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन, तो व्हाट विल बी माय ओरिजिनल अल्कीन, तो क्या करोगे बोलो। हाँ हाँ देख रिवर्स करने का, क्या करने का बेटा, देख ये जो देव दिया रहेगा ना उनका, ये दोनों गायब कर दे, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड डाल दो, खत्म, ओरिजिनल बन गया कि नहीं बोलो। आता है हाँ ये क्वेश्चन पे, ओजोनोइड बहुत है, हम लोग ये 12th में भी, हम लोग 12th में एक चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स, वहां पे ये सेम रिएक्शन आने वाला है। इसमें दो तरह का क्वेश्चन आएगा, ओरिजिनल देके और फाइनल बनाने का, तो आपको ट्रिक बता दिया ना बेटा, MCQ आएगा तो डबल बॉन्ड ब्रेक करने का, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड। हाँ जब प्रोडक्ट दो अलग अलग दे दिया तो, और बोला ओरिजिनल कौन है, तो ओ को निकाल देने का, और वो दो कार्बन के बीच में क्या डालने का, डबल बॉन्ड। सिया बेटा समझा क्या किया हमने। तो देख बेटा ये देख अभी मैं तेरे को पूरे रिएक्शन देख, अभी देख मेरे को ट्रिक भी बता, देख ये वाला हम लोग ने लिया यहाँ पे, तो अभी तुमको मालूम है डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट तेरे को ढूंढने का था, तो क्या करने का, ये गायब कर दे, इस पे डबल बॉन्ड हो, इस पे डबल बॉन्ड हो, देख मिला के नहीं, राइट ना। अच्छा अगर ओरिजिनल बोला तो ढूंढने के लिए क्या करेगी, ये देख ये ट्रिक था ना, ट्रिक देख अभी, ट्रिक जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है उसको तोड़ देने का, देख तोड़ दिया, फिर वो डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट है, यहाँ पे वो यहाँ पे वो, देख दोनों मिल गए कि नहीं। अरे उल्टा भी पूछ सकते, मैंने ये दो दिया और ओरिजिनल बोला ढूंढने के लिए, तो क्या करोगे, समझे कि नहीं, बोलो ना भाई, इफ आई गिव यू दिस और मैंने तुमको बोला ओरिजिनल क्या होगा, मैंने बोला ओजोनोलिसिस क्या, मुझे ये दो मिला, मेरा ओरिजिनल क्या है, हाँ ये दोनों का वो गायब करके ज्वाइन कर देने का, अब समझ में आ गया। तो रिएक्शन बेटा कभी भी पड़ जाए तो दोनों दिमाग में रखने का, कभी उल्टा पूछा तो भी आपको आना चाहिए। समझ में आ गया ना, देख अभी मैंने ये दे दिया है एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन दिया है तुमको, क्या दिया है, चलो एसिटाल्डिहाइड और देख अल्कीन लिया है, देख वही उल्टा क्वेश्चन मैंने पूछा, एसिटाल्डिहाइड मतलब कितने कार्बन दे दिए, एसिटाल्डिहाइड मैंने बना दिया, 2 कार्बन होता है, एसीटोन में 3 होता है पता है ना, और डबल बॉन्ड होता है, ये मेरे को मिला, अभी मैंने आपको क्या बोला, व्हाट इज द क्वेश्चन आस्क्ड, रीड, MCQ में क्या क्वेश्चन पूछा मैंने, देख इसमें से कौन होगा बताओ, तो कैसे करोगे, ओरिजिनल अल्कीन, आई वांट टू फाइंड दिस अल्कीन, हु इज दिस अल्कीन, टेल मी। अरे दिस इज माय क्वेश्चन बेटा, हु इज दिस अल्कीन, ये जो अल्कीन है वो कौन है, वो हमको ढूंढना है, तो कैसे करोगे बोलो। अभी ट्रिक दिया ना, अबे ये दोनों का ये गायब कर दे, देखो चलो तो पूरा बताता हूँ, और इसको दोनों को ज्वाइन कर दे। ओके तो चलो देखते बेटा, ये देख कैसे करने का, देख देख इन दोनों को ज्वाइन कर दे, ओ को गायब कर दे, ज्वाइन कर दे, टिंग टिंग। 1 मिथाइल कैसे होगा बे, 2 मिथाइल होता है, 1 मिथाइल कभी होता है क्या, ईडी, 1 2 3 4, ब्यूट टू इन, और 2 पे कौन है, मिथाइल, तो 2 मिथाइल ब्यूट टू इन, गॉट इट। ये तुम्हारा, अच्छा अभी आप बोलोगे सर ये हमारे नोट्स में कहाँ पर है ये सब रिएक्शन, तो मैंने ना बहुत सारे एग्जांपल दे दिए भर भर के इसके, देख देख रहा है बेटा, अभी तुम डायरेक्ट ये देखो और फाइनल प्रोडक्ट देखो, क्या किया मैंने, ये गायब कर दिया, इधर पे डबल बॉन्ड हो डाला कि नहीं, ये देख रहा है। अच्छा मैंने ये सेकंड स्टेप में देख मैंने जिंक क्यों लिया था, याद आ रहा है कि नहीं,
क्योंकि ये जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता था ना बेटा वो डेंजरस है, तो देख जिंक उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। फिर देख मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ये देख प्रोपीन लिया है, क्या हो जाएगा, इसको गायब कर दे, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, देख यही आया कि नहीं, देख रहा है, डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट ढूंढने का ट्रिक। फिर मैंने क्या लिया था, देख ब्यूट टू इन, देख रहा है कि नहीं, तो फाइनल प्रोडक्ट के लिए क्या करोगे, इसको गायब कर दे, डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, राइट ना। फिर देख ये लिया है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे बेटा, डबल बॉन्ड हो और इसको गायब कर दे। देख यही जो मिला ना प्रोडक्ट, देख रहा है, एसीटोन एंड इथेनॉल, मैंने दोनों नाम दे दिया, उल्टा भी पूछ सकते हैं, याद रखना। फिर देखिए लास्ट वाला बचा था, वो हाई पूरा सब्सटीट्यूटेड है, तो दोनों भी क्या मिलेगा, कीटोन कीटोन या एसीटोन एसीटोन। इजी, हेलो, बरोबर है, क्लियर, राइट। अब बेटा ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन, ये भी अच्छा, मैंने आप लोगों ने टेंथ में एक पढ़ा था, इफ आई गिवन यू टेस्ट ट्यूब, उसमें अल्के, हाँ अल्केन है या अल्कीन है, तो पहला क्या करने का बेटा, ब्रोमीन सोल्यूशन डालेगा तो अल्कीन डीकलराइज हो जाता है। वैसे ही बेटा दूसरा सोल्यूशन क्या था, हम लोग क्या डालते थे, डाइल्यूट कमीनो अल्कलाइन कमीनो फोर पोटेशियम परमैंगनेट, याद आ रहा है कि नहीं, तो उसका पर्पल कलर गायब हो जाता था, पर्पल कलर। इसलिए बेटा इसको हम लोग क्या, अच्छा ये रिएजेंट किसने बनाया था, डाइल्यूट कमीनो फोर अल्कलाइन है, याद रखना डाइल्यूट है, किसने बनाया था, बेयर, इसलिए बेयर्स रिएजेंट भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टेस्ट फॉर या बेयर्स टेस्ट, अल्कीन विल चेंज फ्रॉम पर्पल टू, बट अल्कीन कोई चेंज दिखाएगा क्या, इधर पे आ जाओ देख, ये देख बेटा मैं पानी ऐड कर रहा हूँ, ये डाइल्यूट कमीनो फोर लिया है ना, तो डाइल्यूट कमीनो फोर गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन, इट इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, अल्कली और कमीनो फोर रिएक्ट होकर नेसेंट ऑक्सीजन देता है, तो ये नेसेंट ऑक्सीजन आएगा। अब तुमको पता है ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये ओ एच इधर पे जाके चिपकेगा, और ये ओ और एच बचा ना, तो इधर पे जाके चिपकेगा, तो इसको क्या कहते हैं बेटा, डायऑल, क्या बोलते हैं, देखना ये इथेन बन गया है ना, चारों सिंगल बॉन्ड, वन पे ऑल, टू पे ऑल, इथेन 1,2, आजू बाजू कार्बन पे ओ एच होता है, तो उसको कहते हैं ग्लाइकॉल भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो इसका दूसरा नाम है बेटा इथिलीन ग्लाइकॉल, कॉमन नेम। आईयूपीएससी में डायऑल हो जाएगा, डायऑल हो जाएगा ना, अल्कोहल होता तो वन ऑल टू ऑल ऐसा लिखते थे। चल अभी मैंने प्रोपीन लिया, तो भी क्या होगा बोल बेटा, अरे डबल बॉन्ड गायब हो जाएगा, यहाँ पे भी OH आएगा और यहाँ पे भी कौन आएगा, तो प्रोपेन 1,2 डायॉल, या और प्रोपिलीन ग्लाइकॉल, अरे इथिलीन प्रोपिलीन, समझ में आ रहा है ना, ब्यूटिल वो कॉमन नेम है, ग्लाइकॉल कॉमन नेम है, ठीक है। अच्छा, एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज द लास्ट पार्ट विच आई विल बी डूइंग टुडे, ओके। हाँ 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 हाँ, ओके बेटा, ये वाला पार्ट करने का है अपने को, ये लास्ट पार्ट। चलो आए, एसिडिक के एमिनोफोर लेगा, वहां पे क्या लिया था, डाइल्यूट और अल्कलाइन था, अब हम लोग क्या लेने वाले हैं, हॉट एसिडिक के एमिनोफोर। अभी इसमें कैसे याद रखना है बेटा, प्लीज, हाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसमें ध्यान रखना बेटा। देख मैंने अभी तुमको कौन सा वाला बताया है, देख ये वाला भी हम लोगों ने कर दिया, देख ओजोनोलिसिस पूरा बता दिया कि नहीं, कहानी ओजोनोलिसिस की, ट्रिक भी बताया कि नहीं तुम लोगों को, ठीक है। अभी हाइड्रोबोरेशन बाद में करेंगे, तुम्हारा कौन सा करने का, देख हाइड्रोक्सिलेशन वाला कर देख अल्कलाइन के, देख ग्लाइकॉल वाला बताया कि नहीं। अब बचा कौन सा है बेटा, ये ऑक्सीडेशन, लास्ट पार्ट, हाँ लास्ट पार्ट, चलो ये देख, हॉट एसिडिक होगा ना, तो मैं तुमको एक ट्रिक बताता हूँ, देखो ये याद रखना बेटा, देख सुन, हॉट कमीनोफोर बोला, तो डबल बॉन्ड के बाजू में अगर ऐसा CH होगा, तो इट विल ऑलवेज गिव यू व्हाट बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ये याद रखने का ट्रिक। डबल बॉन्ड के बाहर यहाँ पे अगर R और H होगा, तो इट विल गिव यू व्हाट, RCOH, एसिड देगा, क्या देगा, और डबल बॉन्ड पे दोनों R होगा, दोनों अल्काइल ग्रुप होगा, तो इट विल गिव यू कीटोन, इट विल गिव यू, पहला डबल बॉन्ड पे अगर दोनों HH होगा तो क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, एक R और एक H होगा तो एसिड, और दोनों RR होगा तो, अब मैं दोनों मिक्स भी कर सकता हूँ, देख बेटा ये देख, चल बेटा यहाँ पे देख, जिया बेटा यहाँ पे देख, अभी क्या है बोल, यहाँ पे डबल बॉन्ड के लेफ्ट में देख बेटा, दोनों H है, ये भी H है, तो क्या मिलेगा तेरे को, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ट्रिक भी मैंने दिया है, देख रहा है बेटा, यहाँ पे सब दे दिया, यहाँ पे अभी देख माइनस, यहाँ पे देख
दोनों आर आर है ना, यहाँ पे भी दोनों कौन है, तो देख क्या मिलेगा, कीटोन कीटोन। बोला था ना आर आर वाला रहेगा तो कीटोन। ठीक है, इथेन यहाँ पे देख, ये क्या है बेटा, आर सी एच होगा तो देख एसिड मिलेगा कि नहीं, ये वाला भी आर सी एच है तो ये वाला भी क्या मिलेगा, बोल बेटा। अच्छा, कभी कभी मैं मिक्स कर दूंगा दोनों को, मिक्स कैसे करूंगा, ये देख खिलोनी, ये देख यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, एच एच है ना, तो CO2 मिलेगा, लेकिन इस तरफ क्या है, आर सी एच है कि नहीं, तो ये एसिड मिलेगा, समझा कि नहीं, वो मैंने दो अलग अलग का कॉम्बिनेशन लिया। सुनकर बेटा, ये देखिए सी एच 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 है ना दोनों, तो CO2 और H2, और ये क्या था तेरा आर आर, तो कीटो। ठीक है, अभी लास्ट कॉम्बिनेशन कीटोन और एसिड वाला, ये देख रहा है, ये क्या हो जाएगा बेटा दोनों, और ये देख, ये तेरा आर आर है तो कीटोन, और ये क्या हो जाएगा तेरा एसिड। क्लियर है। पॉलीमराइजेशन आप लोगों ने कहाँ पे पढ़ा था, बोलो बेटा, प्लास्टिक का बैग हम लोग यूज करते कि नहीं, हाँ, इथीन से क्या बन जाएगा बेटा, ये डबल बॉन्ड ब्रेक होके पॉलीथीन, पॉलीथीन पॉलीथीन जो भी बोल सकते हैं, ये पॉलीमराइजेशन। इसमें अपना एक ही रिएक्शन रह गया, वो मैं तुमको बेटा नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, वो है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। ये नेक्स्ट क्लास में आओगे तो पता है मैंने आपको एक नोट्स दिया था, एरोमेटिक और अल्काइंस सब मिला है। हाँ, मैं पार्ट वन, हाँ तो वो लेके आना, क्योंकि उसमें अल्काइंस पार्ट 3, हाँ पार्ट 3, ठीक है ना बेटा, ओके, चलो बाय बाय।